السلام علیکم آل یوزر، میں محمد عمران، پروجیکٹ مینیجر آئی ٹی. ٹھیک ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سلو موونگ سٹاک کیسے چیک کرنا ہے، فاسٹ موونگ، سلو موونگ اور نان موونگ. ٹھیک ہے، یہ ساتھ بتاؤں گا کہ فاسٹ موونگ کا کیا مطلب ہے، سلو موونگ کا اور نان موونگ کا جنرل آئیڈیا تو آپ کو ہے، پھر ڈیٹا سے آپ کو بتاؤں گا. اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں سیل چاہیے اور انوینٹری چاہیے پروڈکٹ وائز. ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کو یہ ایک زون کا بتاؤں گا. اسی طرح آپ نے ریجن کا نکالنا ہے، ایکسل پہ کیسے اس کو رپورٹنگ، ایکسل پہ کیسے رپورٹ بنانی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں جو انفارمیشن ہے سیل کی انوینٹری کی ڈفرنٹ ماڈیول سے آتی ہے، انوینٹری کی ڈفرنٹ سے اور سیلز کی ڈفرنٹ سے. ٹھیک ہے، تو میں آپ نے ویڈیو ساری دیکھنی ہے کمپلیٹ، ایک ایک سٹیپ. پھر آپ نے، کیونکہ وہی کوشچن ہم مجھ سے کرتے ہیں جو ویڈیو میں آلریڈی ایکسپلینڈ ہوتے ہیں، تو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن آپ نے ایک ایک سٹیپ دیکھنا ہے. جب ایک ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھ لیں گے تو پھر آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو میں پہلے سب سے ای یو ایس سی والا سرور اوپن کروں گا. اس کو میں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، اور اس کو کوشش کریں گے بڑی اسکرین پہ دیکھیں، مطلب کمپیوٹر پہ دیکھیں اس ویڈیو کو، یوٹیوب پہ چھوٹے موبائل پہ نہ دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ ای یو ایس سی کا سرور آ رہا ہے، اوپر چیک کریں، اور یہ میرے پاس آئیکن آ رہے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس یہ انالیسس کا، یہاں پہ کلک کریں گے. اس میں سے ہمیں انوینٹری کی رپورٹ اور وہ ملے گی سٹاک کی رپورٹ، سیلز کی. یہ سیل انالیسس لکھے ہیں، یہاں سے سیلز کی رپورٹ نکلے گی، اور یہ سٹاک رپورٹ ہے، یہاں سے وہ نکلے گی. اب میں دونوں بتاؤں گا ون بائی ون. تو سب سے پہلے میں سیل لے لیتا ہوں پروڈکٹ وائز، اس کے بعد میں انوینٹری لوں گا پروڈکٹ وائز. تو میں سیلز پہ گیا. ٹھیک ہے، سیل انالیسس والا یہ ٹیب پہلے ٹائم لے گا، کیونکہ انفارمیشن اس نے پروڈکٹ وائز لینی ہے اور کافی ساری لینی ہوتی ہے، تو یہ ٹائم لیتا ہے. اس پہ آپ نے بس ٹائم اس کو دینا ہے، اور ایک دفعہ جب ڈاٹا آ جائے گا پھر ٹائم نہیں لگے گا. صرف ڈاؤن لوڈ ہونے میں آج کل تھوڑا پرابلم ہے، اس کے بعد یہ پرابلم ختم ہو جائے گا. رائٹ جی، تو پہلے رپورٹ یہ کلک کرنے سے یہ نکل آئے گی. تھوڑا اس نے 1 منٹ کا ٹائم لیا ہے، تو یہ ڈاٹا شو ہو گیا. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ کلک کروں گا. سب سے پہلے یہ جو اوپر ٹوٹل آ رہا ہے، ٹوٹل کے ساتھ مائنس پہ کلک کروں گا. اب سیل اور کوانٹٹی دے دی، یہ زون آ گئے. ٹھیک ہے، اب ہیڈ آفس نے نکالنی ہے تو یہ پوری لیں گے. ٹھیک ہے، اس کو بھی مائنس کر لیں گے ایسے، تو یہ ایسے ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب میں نے صرف کوئٹہ زون لینا ہے صرف. ٹھیک ہے، تو فلٹر میں آؤں گا، ایڈ کسٹم فلٹر، اور یہاں پہ کلک کیا، زون سلیکٹ کروں گا. زون کنٹینس لکھا ہوگا یہاں پہ، یہاں لکھوں کوئٹہ، QUETA، کوئٹہ لکھ کے اپلائی کر دوں. تو اب مجھے صرف کوئٹہ زون کا ڈیٹا آئے گا. ٹھیک ہے، باقی زون بیچ میں سے آؤٹ ہو جائیں گے. پھر اس کو ہم نے منتھ وائز کرنا ہے، پھر آ کے آپ کو بتاتا ہوں. جی، تو یہ دیکھیں میرے پاس کوئٹہ زون کی صرف سیل آ گئی، سیل ویلیو اور سیل کوانٹٹی. اصل ہمارا سارے اس کے اوپر ہے، کوانٹٹی کے اوپر. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد فلٹر لگانا ہے ڈیٹ کا. ڈیٹ کا فلٹر لگانا ہے، کب سے ہمیں چاہیے یہ سیل. تو ڈیٹ سلیکٹڈ ہے آلریڈی، یہاں سے ان بٹوین والا آپشن از بٹوین. تو 2 ڈیٹیں ہمیں 1 مئی سے 30 اکتوبر تک چاہیے. اپریل نہیں لے رہے، اپریل کیونکہ رمضان کا منتھ تھا اس لیے ہم وہ نہیں لیتے. تو ہم پیچھے جاتے ہیں، یہ 1 مئی، 1 مئی، اور اس کے بعد 30 سپٹمبر تک لے لیتے ہیں، یہ 30 سپٹمبر. ٹھیک ہے، یہ جب تک بھی لینا چاہیں، لیکن ابھی سٹینڈرڈ یہ چل رہا ہے، اسی پہ لیں گے. اپلائی کریں، اور یہ پھر لوڈ کرے گا، اور اس کی سیل کو ویلیو کم ہو جائے گی ظاہر ہے. ٹھیک ہے، ٹائم یہ لے گا 1-2 منٹ ہر اس کے اوپر. جی، تو اب میری فگر دیکھیں پھر ریڈیوس ہوگی، اور کوئٹہ کی اب یہ فلٹر 2 لگ گئے ہوئے ہیں، کوئٹہ زون اور 1 مئی سے لے کے 9. اب ہم اس کو مائنس پہ کلک کریں گے، ہمیں چاہیے پروڈکٹ وائز. یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں پروڈکٹ آ رہا ہے، یہ پروڈکٹ لکھا ہوا. تو اب یہ پروڈکٹ وائز سیل دے دے گا مجھے. اگین ٹائم اس نے 1-2 لینا ہے، میں اس لیے آپ کے لیے تیز کر رہا ہوں. جی، تو اب یہ میرے پاس آئٹم وائز ساری پروڈکٹ آ گئی، آئٹم وائز آ گئی. لیکن میں نے اس کو کیا کرنا ہے، مجھے یہ چاہیے منتھ وائز بھی. تو منتھ کے لیے میں یہ والا یہاں پہ پلس پہ سائن، یہ جو اوپر آ رہا ہے ادھر کلک کروں گا، ڈیٹ، اور یہاں پہ منتھ سلیکٹ کروں گا. تو اس کالم میں وہ منتھ بنا دے گا اس ساری جگہ پہ. تو منتھ آ جائیں گے آپ کے.
जी। तो ये देखें, ये मेरे पास आगे मंथ वाइज होगी, इसने भी 1 मिनट लिया मेरा टाइम, और ये मैं एक ही आइटम वाइज क्वांटिटी वाइज, ठीक है, आगे टोटल भी आ गया। अब ये डाटा हमने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और अगेन याद रखें, हमें इस क्वांटिटी की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोई भी स्टॉक आता है वो क्वांटिटी में आता है, क्वांटिटी में सेल होता है, काउंट करके हम लेते हैं, काउंट करके हम बेचते हैं। एनीवे ये आइकन आ रहा है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अगर ये ज्यादा डाउनलोड नहीं हो रहा डाटा सम टाइम, तो आप सिर्फ 1 मंथ यहाँ फिल्टर लगा के सिर्फ 1 मंथ का लगा लें, फिर 1 मंथ का डाटा कम हो जाएगा तो वो डाउनलोड शायद दे दे आपको। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ इसको, तो ये डाउनलोड पे चला जाएगा। ये भी अगेन थोड़ा सा टाइम लेगा। फौरन ही डाउनलोड दे दिया, ये देखें 1 मिनट में डाउनलोड हो गया। अब आपका प्रोसेस दूसरा स्टार्ट होगा। अब ये इस फाइल के साथ क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबके पहले यहाँ एनेबल एडिटिंग करेंगे, ऊपर आ रहा, ठीक है। इस कॉलम को बड़ा कर लेंगे पहले वाले को, ये, ताकि आपका ये प्रोडक्ट इधर आ जाए। ये मास्टर शीट हो जाएगी, ठीक है। इसका नाम रिपोर्ट है, इसका मैं नाम चेंज करता हूँ, रीनेम, इसका लिख देता हूँ सेल रिपोर्ट, ठीक है। इसका नाम सेल रिपोर्ट करके यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ, और इसको मैं अगेन सेव कर लूंगा, और इसका फाइल सेव एज करूंगा जहां भी आपने रखनी है। ब्राउज, मैं आपने जहां भी रखनी है इसको मैं रख लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ कोयटा जोन सेल, कोयटा जोन स्लो मूविंग एनालिसिस, राइट। ये इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये मास्टर शीट आपकी एक सेल की अब आ गई। अब ये सेल कौन सी आ रही, पॉज की सेल आ रही है, ठीक है जी, पॉज की सेल। अब हमने लेनी है फ्रेंचाइज की सेल भी तो ऐड करनी है, वो भी आपकी सेल है, तो उसको भी लेना है, उसको भी डाउनलोड करते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, कोयटा जोन के सर्वर पे जाएंगे। ये कोयटा जोन का सर्वर आ गया, यहाँ पे जाएंगे सेल्स के ऊपर, सेल्स पे क्लिक करेंगे, या माई कोटेशन आ रहा होगा, इसको आप हटाएंगे। अगर आपके पास राइट्स नहीं आ रहे तो आप राइट्स ले लेंगे आईटी सेक्शन से, हेल्प डेस्क टीम से, ठीक है। इस तरह बाकी जोन के तो जितने फ्रेंचाइज को जो ऑर्डर्स जाते हैं वो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तब ऊपर देखें ऑर्डर्स आ रहे हैं, इनवॉइस आ रही है, प्रोडक्ट आ रही है, रिपोर्टिंग आ रही है। तो आपने क्या करना है, रिपोर्टिंग पे क्लिक कर लेना है। रिपोर्टिंग पे करेंगे तो सेल्स आ जाएंगी, और यहाँ पे भी अगेन ये पिवट टेबल आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। वीडियो सारी उसी बार बार कह रहा हूँ, यहाँ भी उसी तरह का एक मॉडल है, ठीक है। यहाँ मैंने प्रोडक्ट वाइज सेल ले लेनी है और फिल्टर लगा लेना है डेट का, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे, सेल ऑर्डर्स आ रहे हैं इसके, तो ऑर्डर डेट फिल्टर करनी है, ग्रुप और फिल्टर में ध्यान में रखना। ऑर्डर डेट मुझे कब से चाहिए, क्योंकि जब से वो मैंने इसकी एक ही हम ले लेंगे, मंथ वाइज नहीं इसको करेंगे, एक ही फिगर ले लेते हैं आसानी के लिए। तो वो स्टार्ट लेंगे मई से, फर्स्ट में, अब क्लिक हो गया। आप 30 अप्रैल से करेंगे, अप्रैल, ये 30 अप्रैल। डेटें गौर से ठीक तरीके से लगानी है, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अप्लाई कर देते हैं इसका, इस वैसे इसका डेट लगाने की मैंने वैसे आपको बता दी, लेकिन इसकी तो डेट ही सिर्फ जुलाई और अगस्त की सेल आ रही है, ज़्यादा तो आ ही नहीं रही। तो बाकी जोन में ये होगा कि आपने डेट लगानी होगी, ठीक है। तो डेट का फिल्टर भी इसने फौरन ले लिया, यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे भी इसी तरह, यहाँ पे क्या करना है, क्वांटिटी डिलीवर्ड, ये लिखें क्वांटिटी डिलीवर्ड, सिर्फ डिलीवर क्वांटिटी लेनी है ये वाला, और यहाँ पे टोटल अमाउंट लेनी है ये वाली, बस, ठीक है। इसको हटा दें, ये कॉलम सेलेक्ट करने के लिए जगह होती है। तो डिलीवर क्वांटिटी, एक होती है ऑर्डर, एक होती है इनवॉइस, ठीक है। आपने सिर्फ डिलीवर क्वांटिटी ले लेनी है, टोटल ले लेना। तो ये मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो डिलीवर क्वांटिटी आ गई, ये हो गया। यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं कर दूंगा प्रोडक्ट वाइज, नीचे प्रोडक्ट आ रहा होगा, स्क्रॉल करें नीचे, ये प्रोडक्ट पे क्लिक करें, तो अब इसकी भी प्रोडक्ट वाइज आ गई, और ये प्रोडक्ट के कोड आपस में बिल्कुल मैच, उसी तरह मॉडल ये मैच करता। इसको अलाइन करने में यानी तरतीब देने में हमें आसानी होगी, ठीक है। अब इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। ये डाउनलोड होके
अब ये नई शीट नहीं बनाऊंगा, ये शीट तो डाउनलोड में मेरी पड़ी रहेगी मेन। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, जितना भी आया मेरे पास प्रोडक्ट वाइज, कंट्रोल सी, और इसको अपनी जो मेन शीट हमने बनाई थी उसके अंदर जाते हैं, क्वेटा जोन, और इसमें ये नई शीट ऐड करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं, यहाँ पे ये आ गई। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं रीनेम फ्रेंचाइज सेल। ठीक हो गया, ये एक फ्रेंचाइज सेल वाली बन गई। तो ये दोनों सेलें हम आपस में जमा कर लेंगे, वो कैसे करेंगे वो बताऊंगा। अब आते हैं क्वांटिटी के ऊपर, इन्वेंट्री के ऊपर। तो इन्वेंट्री के लिए यही है एनालिसिस का, मेन सर्वर के ऊपर आना है। ये ध्यान रखना है अपने सर्वर कौन सा यूज करना है, मेन सर्वर के ऊपर आना है, स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टॉक क्वांट, राइट, स्टॉक क्वांट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे उसी तरह आपने पहले करना है, हाँ कोयटा जोन कर लें तो ज्यादा बेहतर है, फिल्टर करके अगेन कोयटा जोन पे चले जाते हैं डायरेक्ट, पहला काम यही करते हैं। जोन यहाँ पे आ रहा होगा, ये देखें जोन जेड पे है जोन कोयटा, अप्लाई कर देते हैं। तो ये कोयटा जोन का सिर्फ आ गया। अब एक और फिल्टर लगाते हैं कि वेयर हाउस ओन ब्रांड का भी, क्योंकि ये मेन सर्वर है, यहाँ वेयर हाउस ओन ब्रांड का भी स्टॉक आ जाता है सम टाइम, तो ये फिल्टर भी लगा लें ताकि वो वाली क्वांटिटीज आपके ना आए। अब ये फिल्टर जरा ध्यान से देखें क्या लगाना है। यहाँ पे लिखना है लोकेशन, लोकेशन यहाँ कंटेन की बजाय लिखना है डज नॉट कंटेन, ये वाली लोकेशन मेरे पास ना आए, तो यहाँ पे लिख दें WOB, वेयर हाउस ऑन ब्रांड मेरे पास ना आए, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब कोयटा जोन है लेकिन वेयर हाउस ऑन ब्रांड उसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने लेनी है ये पिवट टेबल में चले जाएंगे, ये वाला साथ जो आ रहा है इस पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम ये ऊपर इसको माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, यहाँ मैयर्स पे जाएंगे और यहाँ पे लेंगे क्वांटिटी और लेंगे कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, क्वांटिटी। अच्छा, रीजन के लिए भी यही, सिर्फ आपने फिल्टर जहाँ मैं जहाँ जोन की बात करता हूँ वहां आपने फिल्टर रीजन लगा देना, रीजन के नाम से, तो वो रीजन वाइज आ जाएगी। ये ज़हन में रखें ये न कहें। और इसी तरह स्टोर का भी करेंगे, स्टोर का भी यहीं से निकल आएगा। बात समझ रहे, स्टोर की क्वांटिटी, वैसे सेल ये चीजें उधर स्टोर के उधर से भी निकल आती हैं, एंड में बता दूंगा, तो यहाँ से ही निकलेंगी, यहाँ से भी और वहां से भी। स्टोर के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, लोकल सर्वर से भी मिल सकते हैं, मेन से भी। तो ये कॉस्ट आ गई क्वांटिटी, ये कॉस्ट आ गई, कोयटा जोन आ गया। इसको मैं माइनस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, इसको मैं प्रोडक्ट वाइज, क्योंकि हमने सारा एनालिसिस करना है प्रोडक्ट वाइज, क्वांटिटी वाइज, ये प्रोडक्ट पे करें। अब ये प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट वाइज आज की इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमेशा करंट होती है, पुरानी इन्वेंट्री कभी भी नहीं होती, क्योंकि ये हर वक्त चेंज होती रहती है, सुबह और शाम और दिन को, और जैसे जैसे स्टॉक्स आउट होता रहता है ये चेंज होती रहती है। तो आपने ये क्वांटिटी ले लेनी है आइटम वाइज। इस तरह रीजन का हो तो रीजन की आएगी, रीजन का फिल्टर लगा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐड कस्टम फिल्टर में मैं रीजन का थोड़ा सा बता दूं आपको, क्योंकि आपके क्वेश्चन फिर आ जाए। ये रीजन, तो रीजन लगा के रीजन का नाम नीचे लिख देंगे, अप्लाई करेंगे तो वो रीजन आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं रीजन पे नहीं जा रहा। तो ये आपकी आइटम वाइज आ गई, इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये क्या है, हमारी इन्वेंट्री डाउनलोड। ये डाउनलोड हो गया। ठीक है जी, एनेबल एडिटिंग कर लें और इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं इस डाटा को यहाँ से, क्योंकि एक ही फाइल में हमने तीनों चीजें जाके मैच करवानी। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड करेंगे, एंड तक ये सिलेक्ट हो जाएगा एक ही सेकंड में। अब कंट्रोल C करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। अपनी मेन फाइल पे जाते हैं, ये कोयटा जोन होगी, और यहाँ पे ऐड शीट करते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। और इसका लिख देते हैं रीनेम इन्वेंट्री एज ऑन 5। ठीक है, जो भी डेट आपने लिखी। तो ये अब आपकी फ्रेंचाइज सेल, नॉर्मल सेल, और ये आ गई।
ठीक है। अब इस मेन शीट को अगर यहीं पे आप इसको हम कर लेते हैं सेव, दोबारा डाटा ना हमें डाउनलोड करना पड़े, कोई गलती ना हो जाए, तो मैं फाइल सेव एज करूंगा और इसकी दूसरी फाइल बना लूंगा, इन्वेंटरी एनालिसिस, यहाँ पे 2 लिख लूंगा और सेव कर लूंगा। कभी हमसे कोई डिलीशन हो जाए, अब वो वाली सेव है और ये 2 वाली बन गई है, ठीक है, तो गलती नहीं आएगी। अब इसमें हम सारा एनालिसिस रन करते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें अब यहाँ पे इस जगह ये तो टोटल क्वांटिटी, इस टोटल को बेशक आप निकाल दें, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये निकल गया। अब यहाँ पे हमें चाहिए फ्रेंचाइज सेल, क्या चाहिए, फ्रेंचाइज सेल, क्योंकि वो भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी और वो आ जाएगी। अब इस कॉलम में, इस डब्बे में थोड़ा सा मैंने कहा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको चाहिए फ्रेंचाइज सेल, तो वो इस शीट से कॉपी होके आनी है, उसका फॉर्मूला मैं भी बताऊंगा। इसी तरह इन्वेंट्री फिर अगले कॉलम में आएंगी, तो यहाँ से इन्वेंट्री कैसे लेके आनी है वो भी बता दूंगा, लेकिन एक काम उससे पहले करना है। पहले एक ट्राई करते हैं, पहले फॉर्मूला लगाते हैं कि ये इसी कॉलम, इस क्योंकि सारे तीनों में एक तरह के हैं कोड का टाइप, अगर इसने एक ही तरह का इससे ले लिया तो ठीक, वरना कोड के लिए हमें अलग करना पड़ेगा इस कॉलम को। इसको बड़ा कर लेते हैं। तो अब हम पहले अटेम्प्ट करेंगे, गौर से देखिएगा वीडियो को, बार बार उसे फ्रेंचाइज सेल के हमने यहाँ पे लेके आनी, क्वांटिटी पहले क्या चीज आ रही है, हाँ क्वांटिटी, हर आइटम के आगे ये ऊपर वाला इसकी अगेन लाइन हटा दें आप, ये जो पहली लाइन आ रही टोटल वाली ये हटा देते हैं, डिलीट कर दें, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा अब आगे और पहले कॉलम के अंदर, ठीक है, इस कॉलम के अंदर मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा और लिखूंगा अपने कीबोर्ड से वी लुकअप, तो ये देखें वी लुकअप आ रहा है, ये देखें, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, वी लुकअप लग गया और डबल क्लिक लग गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले कॉलम का एड्रेस कौन सा रखूंगा कि ये वाला, ये ठीक है, तो ये ऊपर बार में देखें, ये देखें A4 लग गया, ये ऊपर आ रहा है, यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगा के अब मैं नीचे फ्रेंचाइज सेल पे चला जाऊंगा, फ्रेंचाइज सेल पे आ गया और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा ये पहला कोड से, यहाँ से लेके ये पूरा सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड नीचे तक सिलेक्शन हो गई। अब फिर ऊपर आऊंगा इस बार के ऊपर, मैं कह रहा हूँ इस कॉलम में, इसको देखो कौन सा कॉलम हमने उठाना है, क्वांटिटी वाला, ये दूसरा कॉलम बनता है, ये पहला कॉलम है तो ये दूसरा, यहाँ कॉमा लगा के दो लगाऊंगा, उसको बता रहा हूँ कि दूसरे कॉलम से डाटा उठाए, फिर आगे कॉमा लगाऊंगा। अब वो कह रहे हैं क्या मैच करना है एग्जैक्ट, हाँ मैंने एग्जैक्ट मैच करना है, दूसरा आ रहा ऑप्शन, इसको क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, ये ऊपर चला जाएगा और मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा, तो ये देखें ये 785 यहाँ पे आ गई, नजर आया आपको, 785 यहाँ पे आ गया, तो इट मीन फार्मूला हमारा कामयाब है। सम टाइम अब क्योंकि सारा एक जैसी सिचुएशन, 785 क्रॉस चेक करते हैं कौन सी आइटम इसने उठाई है, देखें ये क्या है, शुगर की सेल इसने सारी ढूंढी है, शुगर, यहाँ पे शुगर किधर है, शुगर, कंट्रोल F करते हैं, शुगर ढूंढते हैं, शुगर, ये शुगर, ये देखें 785 इसके आ रहा है, तो इसने 785 को उठा लिया, बात समझ आई। तो अब 1 सेकंड में आपका सारा डाटा अलाइन हो जाएगा। इसको डबल क्लिक करूंगा मैं, ये कोने पे छोटा सा बना, डबल क्लिक करूंगा तो ये सारा नीचे इसने जहां जहां सेल है वहां इसने सेल ले आएगा जिस आइटम, क्योंकि अब सब आइटम की सेल तो नहीं है, फ्रेंचाइज को कुछ आइटम की सेल हुई है, तो जहां पे उसको फिगर नहीं मिली उसने क्या कर दिया, NA, ठीक है, जहां पे उसको फिगर नहीं मिली उसने सिर्फ NA कर दिया। अब ये देखें, तो NA वाली फिगर को आप डिलीट कर लेंगे, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आगे, एक ही दफा डिलीट करेंगे सारी। तो ये होगी फ्रेंचाइज सेल, ये ऊपर इसकी क्वांटिटी आ गई, ठीक है। इसको रैप कर लेते हैं ताकि ये आगे यूं रैप कर लेंगे तो ये इस तरह। अब आएगी हमारी इन्वेंट्री, एज ऑन 5
आराम से। अब इन्वेंट्री भी सेम यही फार्मूला, इन्वेंट्री की क्वांटिटी क्यू टी वाई। जब ये आगे चला जाता है तो इसको आप जो एक्सेल जानते हैं तो पता है, यहाँ से रैप टेक्स्ट करते हैं तो वो इकट्ठा। अब इसकी भी क्वांटिटी लेके आनी है इसी के सामने, तो अगेन वही फार्मूला लगाएंगे। क्या करूंगा मैं, इक्वल टू वी, वी आया तो वी लुकअप, डबल क्लिक। अब मैंने कौन सा कॉलम, यहाँ से नीचे आऊँ स्क्रॉल करके, ये इस टेबल को देखना है और ऊपर चले जाना है इस बार के, यहाँ पे कॉमा लगाना है, कॉमा। कॉमा लगाते ही मैंने इन्वेंट्री वाली शीट के ऊपर आ जाना है और इन्वेंट्री वाली शीट को पहले से ऐसे करके सिलेक्ट करके एंड, ये पूरी सिलेक्शन हो गई। फिर ऊपर चले जाना है, ये ऊपर देखें इसने सिलेक्शन ले ली, कॉमा। अब यहाँ से अगेन पहला वाला यानी दूसरा कॉलम उठाना है, ये पहला है ये दूसरा क्वांटिटी के, तो ये उठा लूंगा मैं, इसको दो यहाँ लिखेंगे दो, दूसरा कॉलम, इसका मतलब होता है दूसरा कॉलम। फिर कॉमा लगाऊंगा और फिर मुझे पूछेगा ट्रू मैच करवाना, एग्जैक्ट मैच, तो मैं कहूँगा एग्जैक्ट मैच, तो इसको डबल क्लिक करूंगा, ये ऊपर चला जाएगा, फॉल्स लिखा हुआ आएगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करूंगा तो मैं मेन शीट पे वापस आ जाऊंगा और ये देखिए ये मेरी क्वांटिटी शुगर की आ गई। अब मैं इसको एक दफा क्रॉस चेक कर लूंगा, 1957, ये जाते हैं शुगर की क्वांटिटी देखते हैं किधर है। ठीक है, ये देखें 1975 ये पहले पे आ रही है, तो ये क्वांटिटी इसने ठीक उठाई, राइट हो गया। अब मैं यही फार्मूला चुप करके कॉपी करूंगा, नीचे से डबल क्लिक करूंगा तो नीचे तक कॉपी हो जाएगा और सारा डाटा वहां से इन्वेंट्री का इस कॉलम इस कोड के सामने आ गया। ठीक है, जहां पे इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है वहां पे उसने NA कर दी है, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपका काम हो गया आसान। अब हमने लेनी है, अच्छा एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो हमने लेके आनी है वहां पे, कॉस्ट, इन्वेंट्री की कॉस्ट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट प्राइस लगाएंगे। एवरेज कॉस्ट प्राइस लेने के लिए यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकल आएगी, कैसे निकलेगी, एवरेज कॉस्ट, ये नीचे कॉस्ट किस तरह निकलेगी, वैल्यू को, ये जो पहला वैल्यू वाला कॉलम है डिवाइड करेंगे कॉस्ट पे तो कॉस्ट निकलेगी, ये करेंगे इक्वल टू, ठीक है थोड़ा बड़ा कर लो इसको, चले बड़ा नहीं, इक्वल टू तो C4 ये वाला कॉलम डिवाइडेड बाय ये वाला कॉलम B4। ठीक है, अब ये है कॉस्ट। ठीक है, डबल क्लिक करूंगा तो ये नीचे तक कॉस्ट वैल्यू आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब इसको मैं कंट्रोल C करूंगा और अगले कॉलम पे दोबारा पेस्ट स्पेशल करके वैल्यू, इस वैल्यू पे ओके करूंगा। अब सिर्फ वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि मैंने वैल्यू आगे लेके जानी, ये फार्मूला है, जब इसको मैं कॉपी करूंगा आगे तो ये फार्मूला होके कॉपी जाएगा। मैं इस कॉलम को कॉपी कराऊंगा, कितने 1 2 3 4 चौथे कॉलम। ठीक है, एवरेज कंट्रोल C करके जब एवरेज कॉस्ट लेता। ठीक, अब अगेन इधर आते हैं सेल रिपोर्ट के अंदर, एवरेज कॉस्ट के अंदर वही फार्मूला, वी लुकअप, डबल क्लिक, पीछे आएंगे और क्लिक करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद उस शीट इन्वेंट्री वाली शीट पे जाएंगे। उसके बाद ये अब अगेन उसी तरह ये पूरा सिलेक्ट होता है। ठीक है, पूरा सिलेक्ट हो गया। अब कौन सा कॉलम हमने, ये पहला होता है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा कॉलम। तो यहाँ कॉमा डाल के हम कहेंगे पांचवा कॉलम टिक करें, फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा के कॉमा के बाद पांचवा कॉलम, तो क्या पांचवा है, 1 2 3 4 5 कॉमा, एग्जैक्ट मैच नहीं आ रहा इसका, नहीं इसका कुछ इशू आया है, लेट मी सी, ये हम दोबारा चेक करेंगे। वी लुकअप
मैच करना है, इसको इन्वेंट्री पे आना और यहाँ पे आके एंड कॉमा 5, ये शायद 5 का कॉलम नहीं उठा रहा, वरना वो आगे कॉमा देके एग्जैक्ट मैच निकाल रहा है। करते हैं एक सेकेंड, उसी फॉर्मूला को वीडियो यहाँ स्टॉप करके मैं चेक करता हूँ कहीं इशू कोई आ रहा है। जी, तो ये मुझे पता चल गया A4 नहीं ले रहा था यहाँ पे, तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। कौन सा यहाँ से जो जिस पे वो प्रोडक्ट नेम है वो A4 कॉलम है, तो पहले A4 ले लेंगे, ठीक है, A4 का। उसके बाद नीचे जाएंगे, बाद सिलेक्शन नहीं लेता, इस तरह लेंगे। अब इस पे जाएंगे, यहाँ पे वो सारा इस पूरे को सिलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट हो गया। आप देखें ये आता है A4, वो जो उस सीट में था, और ये यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉलम नंबर 5 उठाना है और फिर कॉलम लगाया ट्रू मैच। जब तक ये एग्जैक्ट मैच आ गया इट मीन आपका फार्मूला ठीक लग रहा है। एग्जैक्ट मैच ना पूछे समझे कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को दोबारा देख लीजिए, डबल क्लिक करेंगे ये, और इसको मैं क्लोज कर दूँगा और एंटर करूँगा। कहते हैं वी लुकअप A4 inventory, do you want to accept? We found typo in your, यार मैंने कोई गलत टाइपिंग की है, ठीक है, कॉमा गलत, वो कह रहा है मैं ठीक कर दूँ, ओके ठीक कर देते हैं। तो ये 68 रुपीज चीनी की एवरेज प्राइस आ गई, ठीक है। शुगर की एवरेज कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ये 19-20 हो सकती है, ये जिस हम अंदाजे के लिए ले रहे हैं। अब ये कोई कहे कि ये ठीक नहीं आई, तो अगर कोई आपको लगता है कि ठीक नहीं आ रही तो आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये एवरेज कॉस्ट आ रही है बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। ये अब जहाँ जहाँ पे उसकी एवरेज कॉस्ट मैच हुई वो तो उसने ले ली, बाकी जहाँ इन्वेंट्री नहीं है, देखें इसकी सेल भी नहीं है, इन्वेंट्री भी नहीं है, तो इसका आगे डाटा भी नहीं आया। तो आपके पास फ्रेंचाइज सेल भी आ गई, नॉर्मल सेल भी आ गई, इन्वेंट्री भी आ गई, एवरेज कॉस्ट भी आ गई, ठीक है। और इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लेते हैं आप, इन्वेंट्री इस इन्वेंट्री की, क्योंकि इस इन्वेंट्री की वैल्यू वो वैल्यू वाला से यहाँ आ सकता था, लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कॉस्ट लेके आऊँ। तो कॉस्ट लाने के लिए क्या करेंगे, वही इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट। तो M4 मल्टीप्लाई बाय ये वही वैल्यू आ जाएगी, इन्वेंट्री की वैल्यू। डबल क्लिक करेंगे इसको, ये इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जरा इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमने एवरेज सेल अभी नहीं निकाली, एवरेज सेल निकालने। इसको थोड़ा मैं कॉलम को छोटे कर लेता हूँ। एवरेज का फार्मूला लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। मैं जरा फॉर्मेटिंग करके आपको जी, तो ये जरा ये ब्लैक टोन आ रही है, इसको हम खत्म करते हैं। इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके नो फिल कह देता हूँ, थोड़ा सा हमें चीज नजर आ जाए। और जिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं उसको हम थोड़ा कलर दे देते हैं, ये ताकि हमें पता चलता है। अब मैंने जरा गौर से देखना क्या करना है। यहाँ पे इंसर्ट काम हमारा हो चुका है, हमारा काम अब 1 सेकंड का रह गया, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें डाटा एक दफा अरेंज करना है आपने, ठीक। यहाँ पहले लेनी एवरेज सेल, क्वांटिटी, ठीक है। उसका फार्मूला क्या है, फार्मूला एक्सेल वाला लगाना है, अपने पास से डिवाइडेड बाय वो नहीं करना। यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल टू, और ये जो ये आ रहा है ना एफ, ये देखें जरा मेरा माउस, एफ पे क्लिक करके एवरेज, ये एवरेज ये करूंगा, ओके।
और ये जो ये बटन है, ये ऊपर वाला एरो, इसको क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ये क्वांटिटी पहली, तो कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा। कंट्रोल का जो बटन आ रहा है उस पर मैंने एक उंगली रख ली कंट्रोल पे। अब क्लिक करता जाऊंगा जो जो ये सिर्फ क्वांटिटी वाले कॉलम मैंने क्लिक करना है। ये देख लें क्वांटिटी, ये ठीक है, ये मैंने कर ली है। सिर्फ इसी तरह आपने गौर से देख के, मैं इसको ये जो शीट खुली इसको ओपन करूंगा, ओके कर दूंगा, ठीक है। अब सेल आ गई, एवरेज सेल। अब इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, अब फार्मूला सारे पे अप्लाई हो गया एवरेज सेल। बात समझे, एवरेज का जो फार्मूला होता है वो पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, वो होता है। अब देखें, ये है सेल, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, मई में तो सेल हुई, बाकी कोई सेल नहीं हो रही, ठीक है। तो इसने इसकी एवरेज निकालने के लिए क्या किया है, 2 पे डिवाइड नहीं कर दिया और 6 पे डिवाइड नहीं कर दिया, यानी महीनों पे डिवाइड नहीं किया, वरना ये छोटी आ जाती फिगर ये। तो इसने एवरेज सेल ये ली है 2। इस फार्मूले का ये फायदा, जहां फिगर होगी उसी फिगर को लेके ये कैलकुलेशन करेगी, जहां फिगर नहीं होगी उसका डिवीजन भी नहीं लेगा। नॉर्मली हमने एवरेज क्या करते हैं, टोटल लेते हैं, टोटल को डिवाइड बाय मंथ करते हैं, तो वो सेल निकल आती है एवरेज। वो एवरेज गलत होती है, एवरेज वही होनी चाहिए जहां पे फिगर हो। अब इसकी 2 ही एवरेज आ रही है, ठीक है, तो इसको हमने नहीं लिया, तो फॉर्मूला ऐसे चलता है एवरेज सेल का, तो हमेशा आपने एवरेज सेल ऐसे लेनी है। अब ये तो एवरेज सेल होगी थी किसकी, आम स्टोर वाली सेल की, ठीक है, ये कॉलम सारे स्टोर सेल से। अब फ्रेंचाइज सेल है, इसकी भी एवरेज सेल लेनी है, इंसर्ट करेंगे। अब इसको आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक ही फिगर लिया हुआ है, वहां पे आपको पता चल जाएगा कितने महीने की सेल है, ठीक है। तो इसको आप दूसरा फार्मूला लगा लेंगे इसके साथ, एवरेज सेल, ठीक है। उसको भी इस तरह कर सकते हैं, या फिर उसका, ये मुझे पता 2 महीने की है क्योंकि वहां पे जुलाई और वही आ रहा था, तो इसको मैं डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, इस कॉलम को इसका M4 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मुझे पता है 2 महीने की सेल है, इसकी 2 महीने पहले इन्होंने किसी फ्रेंचाइज को या इंस्टीट्यूशन को दी। अच्छा, जो इंस्टीट्यूशन को सेल, जो डीसी वगैरह को सेल आ रही है, वो भी फ्रेंचाइज के अंदर ही आती है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि वो सेल कहीं गायब नहीं होगी, वो भी इधर ही आ रही होगी। जो इस तरह मैंने सेल निकालना सिखाया है, जहां से वहां से सारी सेल्स आ जाती है। ये डबल क्लिक करूंगा तो ये सारा नीचे आ गया, ठीक है। तो ये एवरेज होगी। अब ये स्टोर एवरेज, फ्रेंचाइज एवरेज। अब मैंने यहाँ पे अगेन कॉलम इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करेंगे, हाँ ठीक है, कॉलम इंसर्ट करेंगे तो टोटल एवरेज सेल, टोटल एवरेज सेल। अब ये दोनों एवरेज को जमा कर लूंगा, इक्वल टू ये एवरेज सेल, यहाँ प्लस का साइन लगाऊंगा, सॉरी प्लस, कंट्रोल पे प्रेस करूंगा और ये वाली सिलेक्शन कर लूंगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लूंगा, एंटर। तो ये एवरेज सेल जमा होगी, दोनों एवरेज होगी। अब टोटल आपके रीजन की, जोन की जो सेल है वो एग्जैक्ट होगी, कोई मिस नहीं हुई, हर तरह की सेल आप ले ली। इसको डबल क्लिक करेंगे, ये भी नीचे सेल आ गई, ठीक है। अब आते हैं स्लो मूविंग वाले ऑपरेशन के ऊपर, वो कैसे निकलता है। अब उसका फार्मूला देख लें, थोड़ा सा इसको मैं राइट पे लेके आता हूँ। इसको कहते हैं स्टॉक कवर, इसको क्या निकालते हैं, स्टॉक कवर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू, इसको करेंगे इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय सेल। करंट इन्वेंट्री कौन सी आ रही है, ये पी वाला कॉलम, P4 डिवाइडेड बाय एवरेज सेल जो भी निकाली है, ये टोटल एवरेज, ये O4 आ रहा है, O4। ये कोई भी एड्रेस हो सकता है, मेरे पास ये एड्रेस है O4, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय सेल, इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय एवरेज सेल, एंटर। क्या हो गया,
T4 डिवाइड बाय O4 ये आ गया, ये कवर निकला है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 3 महीने के लिए स्टॉक काफी है। अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। डबल क्लिक करे, सारी जगह पर लग गया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग ठीक करके आपको बताता हूँ। ये 3 महीने के लिए, क्यों स्टॉक 3 महीने के लिए है, ये देखें। अब यहाँ पे इसकी इन्वेंट्री और सेल का जायजा ले लेते हैं। कंट्रोल 1 करूंगा, इसको सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल 1 किया, नंबर पे आया, नंबर पे आके ये माइनस ये यूज सेपरेटर ये लगा दें, मैं इस तरह लगाता हूँ। तो ये देखें एवरेज सेल कितनी आ रही, 6,16,000, जबकि इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, 19 लाख। बात समझ रहे हैं? शुगर आपकी मंथली कितनी सेल हो रही है, 6 लाख, जबकि आपने इन्वेंट्री कितनी रखी हुई है, 19 लाख। तो ये इन्वेंट्री कितने दिन यूज होगी, 3.17, 3 महीने से ऊपर, 3 महीने के लिए ये इन्वेंट्री काफी है, ठीक है। अब बात समझे, ये नीचे ले आए, ये वाली इसको देख लेते हैं। इसकी टोटल सेल कितनी आ रही है, 8901 से 89,000, जबकि इसकी इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, बहुत थोड़ी, 8358। तो इसका नंबर आंसर क्या आया, 0, यानी ये बहुत, इसकी इन्वेंट्री थोड़ी है, 1 महीने के लिए भी नहीं है, 1 महीने से भी कम दिनों के लिए पड़ी। तो ये है फास्ट मूविंग, इसको कहते हैं फास्ट मूविंग। अब सबको अलग अलग कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, कि फास्ट मूविंग निकालना है, स्लो मूविंग निकालना है, वो कैसे। ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग ठीक हो जाए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ये बॉर्डर लगा लेते हैं, और ये यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं, ये भी अलाइन कर लेते हैं ताकि चीज थोड़ी सी प्रेजेंटेबल हो। कंट्रोल 1 करते हैं और जनरल में जा इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सारे को, नंबर वाले कंट्रोल 1 करूंगा और यहाँ पे नंबर पे करूंगा, और ये पॉइंट मैंने खत्म कर दिए, 2 पॉइंट तक मैंने कोई भी नहीं डेसिमल खत्म कर दी, इशारे की बात कुछ भी ना हो, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फिल्टर, क्या लगाऊंगा, फिल्टर। ये तीसरा कॉलम जो है ये सिलेक्ट किया, ये तीसरी लाइन, और ये ऊपर आया, ये फिल्टर पे क्लिक कर लिया, फिल्टर पे फिल्टर लग गए। अब पहले सबसे मैं करूंगा, सबसे अब ये कितने आ रहे हैं, ये NA वाला हटा लूंगा। अब कितने आ रहे, 1 2 3, ठीक है। ये आपकी 3 महीने तक की इन्वेंट्री पड़ी है मैक्सिमम, उसके अलावा कोई आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूंगा, ये देखें फिल्टर नंबर आ रहा है, यहाँ पे मैं करूंगा जो फास्ट मूविंग पहले चेक करने, फिर स्लो मूविंग चेक करने। तो इस केस में फास्ट मूविंग के लिए 2 तक, तो मैं कहूंगा लेस देन, लेस देन का लगाऊंगा, तो लेस देन 2.5 कर लूंगा, 2.5 क्या किया, लेस देन 2.5। तो ये है वो स्टॉक इस रीजन का, ठीक है, जो फास्ट मूविंग है, ठीक है। इसका कवर कितना आ रहा है, 1 महीना, 2 महीना, ये 0 वाला भी 0 नहीं है, ये पॉइंट समथिंग है, ठीक है। ये तो है फास्ट मूविंग। अब आपने इसको बेशक कॉपी करके ले जाए, ठीक है। इसकी इन्वेंट्री वैल्यू यहाँ को टोटल लेना, तो यहाँ पे टोटल लगाए, वो टोटल दे देगा इसको। अच्छा हाँ, ऑटो सम कर रहा है, इसको भी टोटल की जरूरत नहीं है, इसको आप सेपरेट भी ले जा सकते हैं, इसके, ठीक है। इसको अब यहाँ पे डाटा कॉपी करके कंट्रोल-C करेंगे, आगे ले जाएंगे, इसकी वैल्यू निकाल लें। तो ये फास्ट मूविंग हो गए, ये फास्ट मूविंग। अब ग्रेटर देन 3 करेंगे, यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन 2.5, ग्रेटर देन 2.5, वैसे 3 लेते हैं
लेकिन इस जोन के लिए मैं 2.5 ले रहा हूँ। ओके करेंगे। तो एक ही ऐसी है प्रोडक्ट जो आपकी स्लो मूविंग है, शुगर, बाकी आपकी प्रोडक्ट ठीक चल रही। ठीक है, अब ये तो था जिसका आंसर आ गया, जिसका आंसर आने का मतलब यानी जिसकी स्टॉक कवर निकल आया। मैं फिल्टर हटा देता हूँ जरा। इसकी फिर आप समरी अलग अलग बनाएंगे। समरी कैसे अलग बनाएंगे, एक हमने समरी बनाई हुई है, मैं आपको वो शीट बता देता हूँ। ये डाउनलोडिंग में कुछ बनी पड़ी है। मैं अभी आपको ओपन करके बताता हूँ जी। तो ये देखें, ये मैंने रिपोर्ट बनाई थी पूरे पाकिस्तान के लिए। ठीक है, या मैंने तरतीब दे दी है सारे। हाँ, ये वेंडर कहाँ से लाने, वेंडर जो है, वेंडर भी अलाइन करके इसी तरह आ जाते हैं। वेंडर आपने जाना है प्रोडक्ट में, वो मैं नहीं बता रहा, मैं चले बता दूंगा। इसको पहले देखें, इस शीट को, फिर आगे बताता हूँ वेंडर कैसे लेके आना। वेंडर आपको पता चल जाएंगे प्रोडक्ट से भी, वो रीजन्स को पता होते हैं। वेंडर का आगे कोई यूज नहीं हमने किया वैसे, तो हमें पता है कौन से वेंडर की। ठीक है, ये मैंने वही शीट बनाई हुई है सितंबर। ये थोड़ी मैंने अब फास्ट इसको तरतीब दे दिया था क्योंकि टाइम था। इन्वेंट्री ऑन हैंड ले ली, एवरेज सेल ले ली, स्टॉक कवर ले लिया। स्टॉक कवर वही फार्मूला लगाया, और यहाँ पे मैंने उसको कहा हुआ है इन्वेंट्री ग्रेटर देन। ठीक है, देखिए ग्रेटर देन 3। ठीक, ग्रेटर देन 3 किया तो ये देखें 3 वाले सारे ऊपर आ गए। ग्रेटर देन 3 किया, फिर इन्वेंट्री वैल्यू पे आया, इन्वेंट्री वैल्यू पे क्लिक किया और इसको लार्जेस्ट वाली ऊपर ले आया। ये देखें लार्जेस्ट, इस पे क्लिक किया तो ये मेरा यानी ये बन गया। तो ये सबसे ज्यादा जो बड़ी इन्वेंट्री है, पहले क्या है कि बड़ी इन्वेंट्री, ये सारा जितने भी आ रहे हैं ये सारा स्लो मूविंग है क्योंकि 3 से ऊपर है, सबका नंबर 3 से ऊपर, 3 महीने से ऊपर। इसका महीना निकलता है, इसको महीना बोलते हैं, 10 महीने। अब ये सारी इन्वेंट्री जो है, आप देखिए कोई 10 महीने के लिए, कोई एक मतलब इन्वेंट्री ठीक नहीं है सारी, 4 महीने की, तो 11 महीने के लिए पड़ी है। ये नीचे, ये इस कॉलम को मैं वो से देख रहा हूँ, इस वाले। ठीक है, इस वाले ये देखें 204 दिन के लिए पड़ी है। मतलब इसकी कहने का ये देखें इन्वेंट्री कितनी है ये, और सेल कितनी आ रही है 34। अभी पूरे पाकिस्तान की है 6953, ये 34 सेल है। इन्वेंट्री कितनी है, तो ज़ाहिर है इसका जवाब भी यही आएगा। हो सकता है ये डैमेज हो, एक कॉस्मेटिक टूथपेस्ट है, ठीक है, डैमेज में पड़ा हो। तो ये आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि इस तरह के आंसर आएंगे जो बहुत ज्यादा बड़े होंगे और थोड़े से गलत होंगे। ठीक है, वो गलत इस वजह से होंगे क्योंकि इनकी मूविंग नहीं है या वो डैमेज में पड़ा है, तो उस पर आपने एक्शन नहीं लेना। बाकियों पे एक्शन क्या लेने हैं कि फास्ट मूविंग को चेक करनी, उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है। अब मैं ये आपको स्लो मूविंग बता रहा हूँ। तो देखें सबसे ज्यादा स्टॉक किसका पड़ा है अभी, कुकिंग ऑयल का, पूरे पाकिस्तान का ये। और ये इसकी सेल क्या आ रही है देखें, ये इन्वेंट्री इसकी पड़ी है ये वाली, ठीक है, 21 मिलियन इतने प्रोडक्ट पड़े, 21 लाख। जबकि इसकी सेल कितनी हो रही है 2,33,000। ठीक है, तो जाहिर है सेल 2,33,000, इन्वेंट्री 21 लाख, तो आपका ये कवर्स बहुत ज्यादा है। 9 महीने के लिए इन्वेंट्री काफी है। अगर 2,33,000 ही बेचे हर महीने तो आपकी ये इन्वेंट्री, इसी तरह इसकी वैल्यू कितनी है आ गई 799 मिलियन। ठीक है, इतनी वैल्यू। अकॉर्डिंगली ये नीचे सारे आ रहे हैं, हाई वैल्यू को हमने ऊपर रख लिया। तो ये वाले प्रोडक्ट जो हैं ये सबसे ज्यादा हाई वैल्यू के हैं और ज्यादा देर के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो इनको रैशनलाइज करने के लिए इनकी ऑर्डरिंग कम करनी है जब तक इसकी इन्वेंट्री ठीक नहीं आ रही थी। प्लस इसकी जो इन्वेंट्री है सेल बढ़ाने के लिए आप रीजन वाइज देखेंगे कहाँ कहाँ पड़ी है और इसको आप मूव करेंगे मुख्तलिफ स्टोरों के ऊपर, ताकि ये वेयर हाउस में ना पड़ी। डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हो तो ये जल्दी निकल जाएगा हबीब ऑयल।
आपने ये तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का आ रहा है, अब आपने वीव ऑयल को अपने अपने रीजन पे देख लेना, वेयर हाउस में कितना पड़ा है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर पे देख लेनी, सारा डाटा सिस्टम से निकल आता है, उसमें कोई इशू नहीं। अब मैं फास्ट मूविंग देखता हूँ। फास्ट मूविंग के लिए मैंने क्या करना है, इसी पे जाना है और लेस देन पे करूंगा, ठीक है, लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3 का 3 महीने से कम वाले, तो ये देखें 3 महीने से कम वाले आ गए। अब ये चेक करते हैं फाइन आटा, इसकी इन्वेंट्री आपको पता कम ही होती है, इन्वेंट्री ऑन हैंड 4,94,000, जबकि सेल इसकी कितनी हो रही है एवरेज 12 लाख, तो इसकी इन्वेंट्री तो बहुत कम है, तो ये अच्छा है, इसकी फ्रीक्वेंसी तेज है, इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी इंश्योर करनी है। दूसरा आइटम कौन सा है, प्लैटिनियम की। प्लैटिनियम की इन्वेंट्री कितनी है 7,28,000, जबकि सेल कितनी दे रहा है 14 लाख, ये 0.5 यानी एक महीने में 2 दफा रोटेट हो जाता है, तो ये इतनी फास्ट मूविंग आइटम है, इसकी अवेलेबिलिटी भी इसके मैच करनी है आपने 14 लाख के बराबर। तो आइडियल ये होता है एक महीने में आपका स्टॉक बिक जाए, जिसका कवर एक आ रहा है 1, वो ओके है, एक से ज्यादा वाला ओके नहीं है, लेकिन हमने फिलहाल क्वेश्चन दिया है 3 तक का आपको, 3 महीने वाला, 3 महीने वाला, लेकिन एक महीने वाला असल आइडियल है। ये बतूल राइस है, ठीक है जी, इसकी इन्वेंट्री कितनी पड़ी है 1,61,000, जबकि हर महीने सेल कितना हो रहा है 56,000, तो ये इन्वेंट्री कितने दिन के लिए काफ़ी है 2.5 महीने के लिए, इसको ये फास्ट तो नहीं है, ठीक है। तो इसकी अब ऊपर इसको हम फर्दर इसको चेक करने के लिए कि कौन सा ज़्यादा फास्ट है कौन सा कम फास्ट है, यहाँ देखते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट वाले आ जाएंगे। इसमें अब अगेन आउटलायर भी होते हैं, आउटलायर उसको कहते हैं कि जहाँ पे अब इन्वेंट्री नहीं लेकिन सेल है, अब इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। कोरोनेट फूड क्या है, रियो चॉकलेट, इसकी इन्वेंट्री तो बिल्कुल ही नहीं है, तो इसका इसलिए जवाब तेज का आ रहा है, फास्ट मूविंग में आ रहा है, क्योंकि इसकी इन्वेंट्री कम थी और ये सेल है, अगर इतनी सेल है, इसकी ज़्यादा सेल नहीं है, तो ये नहीं इसकी ऑर्डरिंग ज़्यादा कर देनी, इसकी ऑर्डरिंग इतनी करनी है ताकि अच्छी सेल कर सके, ठीक है। कुछ इस तरह के आउटलायर होते हैं जो क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं। अब ये क्या है, इन्वेंट्री 1 है, एवरेज सेल कितनी आ रही है 246, ये है कोक, तो कोक की अगर सेल आ रही 246, आप इसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर कराएं इतना कि इसका स्टॉक कवर इन्वेंट्री के मुताबिक इसकी सेल के मुताबिक इन्वेंट्री आ जाए, ठीक है। ये डालडा फूड है रेगुलर रमज़ान वाला, अब ये क्योंकि रमज़ान, ये क्यों अच्छा जवाब आ रहा है, रमज़ान के बाद शायद ये नहीं लिया, तो इसकी इन्वेंट्री कम है क्योंकि इसकी सप्लाई नहीं हुई, और ये एवरेज सेल है इसकी ज़्यादा आ रही है, इसका स्टॉक कवर बहुत कम आ रहा है, तो ये जितने कम आ रहे हैं वो कंसिडर होते हैं फास्ट, लेकिन उसको आपने हर एक को चेक भी करना है कि इसकी इन्वेंट्री अब लेके कितनी मेंटेन करनी। तो इस तरह आप फास्ट मूविंग चेक कर सकते हैं और स्लो मूविंग, इसकी रिपोर्ट फिर यूँ बनाएंगे, फास्ट मूविंग 1.3 नहीं सर, 1 हाँ यहाँ पे लिखा 1.5 मंथ, 3 नहीं लगाएंगे 1.5 का लगाएंगे फिल्टर, तो 1.5 से कम वाले, तो ये बता दिए कितने प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे मैं देखें करता हूँ, बिटवीन पे जाऊंगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1.5, अब 2 लगा दिए कि 0 और 1.5 के दरमियान मेरे पास आए, तो 0 और 1.5 के दरमियान ये आ गए, इसको मैं एंड कर सेलेक्ट करता हूँ। जब इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ये देखें मेरे पास नीचे कितने आ रहे हैं आइटम आ रहे हैं, देखें आइटम कितने आ रहे हैं 748, तो मैं अपनी समरी में जाके यहाँ पे 747 है, तो ये 748 लिख दूंगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, मैं ये वैल्यू वाले कॉलम को इस तरह कर कंट्रोल शिफ्ट एंड सेलेक्ट कर लूंगा, ये देखें वैल्यू मेरे पास ये नीचे सम लिखा हुआ आ रहा है 3.2 बिलियन, 3.2 बिलियन, तो ये देखें 3.2 बिलियन यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये मैनुअली यहाँ पे मैं समरी में डाल दूंगा कि कितने आइटम थे जो मेरे फास्ट मूविंग एरिया में आ रहे हैं, फास्ट मूविंग यानी 1.5 महीने के अंदर बिक जाने वाले, वो ये हैं। उसके बाद मैं अगला लगाऊंगा फिल्टर, अगेन बिटवीन में आऊंगा, ये बिटवीन, अब मैं करूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब वो ले लिया 1.5, ग्रेटर देन इक्वल नहीं करूंगा बल्कि ग्रेटर देन करूंगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1.5,
और यहाँ पे करूँगा 3 से छोटा हो, 3, 1.5 और 3 और 3 से का इक्वल, ये दोनों रेंज दे दी इक्वल। अब ये देखें 1.5 और उससे 3 तक के सारे आ गए। इसका मैं यहाँ पे ये वाला कॉलम सेलेक्ट करूँगा आखिरी, तो ये देखें काउंट बता रहा है, काउंट 812, ये देखें नीचे जरा गौर से 812 आ रहा है, तो ये समरी में गया, यहाँ पे 811, थोड़ा सा फर्क है, ये 812 यहाँ लिख दूंगा कितने आइटम थे। और उसके बाद इसकी वैल्यू ये देखें आ रही 2.33 मिलियन, ठीक है, तो ये 2.33 मिलियन ये देखें यहाँ पे लिख दूंगा। तो आपको पूरा एनालिसिस तैयार हो जाएगा कि आपके 1.5 महीने वाले फास्ट मूविंग वाले कितने आइटम हैं, कौन कौन से हैं, आपको वो तो इस रिपोर्ट में नजर आ जाएंगे। अगेन इसको कॉपी कर करके आप अलग अलग कर सकते हैं कि ये मेरा डाटा आ गया 1.5 का, इसको पूरे को कॉपी किया, नई शीट पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, वैल्यू के साथ, और स्पेशल पेस्ट करके वैल्यू के साथ कर दिया, तो वहां पे सिर्फ ये नंबर जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। इसी तरह तीसरा देखना है, अगेन वीडियो को गौर से देखें, जो एक्सेल जानते हैं उनको ये समझ आ रही होगी। यहाँ पे मैं बिटवीन में ले आता हूँ, फिर अब क्या करना है, यहाँ पे ग्रेटर देन करूंगा, इस ग्रेटर देन मैंने वहाँ 3 लिया था और अब 6 है मेरे ख्याल है। दूसरी रेंज मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ दोबारा, स्लो मूविंग, अच्छा हाँ ये एवरेज मूविंग था, ठीक है, एवरेज था 1.1 से दे, अब लेना मैंने स्लो मूविंग के लिए रेंज क्या है 3 to 6 मंथ। तो यहाँ पे आऊंगा, स्टॉक कवर पे जाऊंगा, नंबर पे आऊंगा और बिटवीन पे आऊंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा ग्रेटर देन 3, ये ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 6, ठीक है, 3 और 6 महीने के दरम्यान वाला मुझे स्टॉक चाहिए, ओके करूंगा, तो ये ऊपर ये करूंगा, ये आ गया, ये मेरे पास स्टॉक आ गया। ये वैल्यू वाले कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लूंगा ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये देखें ये सिलेक्ट हो, जैसे ये सिलेक्ट हो जाता है तो नीचे ये फिगर इसकी काउंट ऑटो दे देता है, 1188 प्रोडक्ट है और साम कितना आ रहा है 4 बिलियन। ये देखें मैं यहाँ पे आऊंगा, ये देखें 1187, वो क्योंकि एक हेडिंग वाला कॉलम भी ऐड किया हुआ इस वजह से वो एक का फर्क देता है, और ये इसका बिलियन की अमाउंट, तो ये 3 से 6 महीने वाली इतनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर 1 बाय 1 आपने प्रोडक्ट वाइज सारा एनालिसिस करना है, ये कहाँ पड़ी है, क्यों कम है, क्यों ज्यादा, वो आपने देख लेना है। अब आखिरी वाला देखने से ऊपर वाला कौन सा, डेड नॉन मूविंग के लिए मैं फिर बिटवीन में आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा ग्रेटर देन 6, यहाँ पे लिखूंगा ग्रेटर देन 6 और हाँ ये इक्वल लेस देन इक्वल टू बस ग्रेटर देन 6 ही करूंगा, क्योंकि अब जो भी है आगे ग्रेटर देन 6 में कोई भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कवर नहीं आया, कोई तो उसको फिल्टर ठीक नहीं लगा, यहाँ पे डायरेक्ट ग्रेटर देन 6, ओके, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे करूँ इसको, तो ये ग्रेटर देन 6 आ गया। अगेन इसको मैं सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एंड, तो इस वाले वैल्यू वाले कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसका काउंट भी देता है, इतनी प्रोडक्ट कितनी है 1871 और इसकी अमाउंट कितनी है 1.9 बिलियन। समरी में आया देखें 1.9 बिलियन आ रहा है, ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है इसलिए बता रहा हूँ, और ये इसकी 1800 इतनी प्रोडक्ट आ रही है। तो अब आप ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो फास्ट मूविंग कितना है 3 बिलियन का स्टॉक है, एवरेज वाला 2 बिलियन का, स्लो मूविंग 4 बिलियन का, इन 4 बिलियन का स्टॉक हमने पे कर दिए इसके पैसे, और ये स्टॉक अभी तक पड़ा और ये निकलेगा 6 महीने तक, उससे पहले नहीं निकलने वाला। ये नॉन मूविंग जो आपका डेड है स्लो। इसके अलावा कुछ आएंगे आपके NA वाले जिसमें डाटा ही नहीं होगा, किसी का सेल मिसिंग होगी, किसी की इन्वेंट्री मिसिंग होगी, वो आप इंडिविजुअल उसको अलग कर लेंगे, उन सबको वो आप इंडिविजुअल उसका एनालिसिस करेंगे कि इन्वेंट्री है, सेल नहीं है, सेल है, इन्वेंट्री नहीं है, कौन सा आइटम उसमें, आप खुद उसका मैन्युअली जायजा लेंगे। तो ये था पूरा लेक्चर आपका, स्लो, फास्ट मूविंग, एवरेज, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, ठीक है।
تو یہ ہے رینج، یہ ہے ویڈیو. ریپیٹ کر کے دیکھیں، ایک اور سے دیکھیں. یہی جو پروسیس میں نے بتایا ہے، ریجن وائز بھی نکلے گا، اسٹور وائز بھی نکلے گا. یہ سارا پروسیس اسی کا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں نے ایک زون آپ کو کمپلیٹ کر دیا، میں نے پورا پاکستان کمپلیٹ کیا ہوا ہے. اب آپ نے اپنے زون کی یہ لے لینی. ٹھیک ہے، رپورٹ ایسے، اور یہ آپ کی نکل آئے گی. کوئی کوشچن ہو تو کامنٹ میں کریں. چینل کو سبسکرائب کریں. چینل یہ ویڈیو سب کو دیکھیں. میرے پاس اسٹور انچارج آتے ہیں، سارے آتے ہیں، وہ آ کے مجھے کہتے ہیں ہم نے تو یہ پتہ نہیں تھا، جبکہ اس چینل پہ ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں، وہ ساری ویڈیو آپ دیکھیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. یہاں میں ویڈیو کلوز کرتا ہوں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی چیز رہ گئی ہے جو میں مس کر رہا ہوں. ہاں، اسٹور والا چلو میں بتا دیتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو تو رہی ہے تھوڑی سی. اور یہ کوئٹہ زون کے اوپر چلا گیا. یہ کوئٹہ زون ہے. اب اسٹور کی سیل بھی پوائنٹ آف سیل میں جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آف سیل میں رپورٹنگ میں جائیں گے، آرڈرز بھی جائیں گے. یہاں پہلے آپ اسٹور کا فلٹر لگا رہے ہیں، کوڈ دیں گے، کوئی بھی اسٹور کا کوڈ دیں گے، وہ یہاں پہ آ جائے گا. اس کو یہاں پہ کلک کریں گے، اگین یہاں پہ کلک کریں گے، یہاں پہ پروڈکٹ وائز کریں گے، تو یعنی پروڈکٹ وائز، کوانٹٹی وائز یہاں سے آ جائے گی. آپ کو یہ کوانٹٹی ہے، یہ اس کی ویلیو، تو یہ کوانٹٹی آ جائے گی. اسی طرح اس کو یہاں پہ کریں گے تو یہاں پہ منتھ وائز آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، منتھ وائز آگے نکلتا ہے. یہاں سے اس کی آ جائے گی یہ والی رپورٹ کوانٹٹی کی. اب اس کی انوینٹری لینی ہے تو لوکیشن پہ چلے جائیں گے، کوئی بھی ایس ڈی این کھول لیں گے، یا آپ ڈیمانڈ ریکوزیشن پہ جا کے، ڈیمانڈ میں جا کے ویئر ہاؤس. یہاں پہ وہ اسٹور والے کی آئی ڈی پہ لوکیشن ہے، خزدار ہے لیٹس کو، تو یہ اسٹور کی آئی ڈیز آ رہی ہیں اور لوکیشن آ رہی ہے ویئر ہاؤس کی آ رہی ہے. یہ کسی اسٹور کی چلا جاتا ہے. اسٹور کا کرنٹ سٹاک دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ آئٹم وائز آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے، کلک کریں گے، یہ اس کی کوانٹٹی آ رہی ہے، اویلیبل کوانٹٹی. وہ سیل آ گئی، یہاں سے کوانٹٹی آ گئی، اور یہ میچ کرا کے اسی طرح وی لک اپ لگا کے آپ ایک دوسرے کے سامنے لکھ لیں گے. تو سیم پروسیس ہے، صرف ڈیٹا نکالنے کے لیے اسٹور کا یہ طریقہ ہے. ریجن کا بھی ایسے ہی نکل آئے گا، ریجن کا وہی ہے زون والا طریقہ، وہیں سے نکل آئے گا. تو اس طرح آپ زون کی اسٹور لیول تک کی آپ اس طرح سلو موونگ فاسٹ موونگ انالیسس نکال سکتے ہیں. اب کوئی کوشچن کرے کہ یہ سسٹم سے خود بخود نہیں نکل سکتی، اس طرح کی رپورٹس کیونکہ ڈفرینٹ کالم سے آ رہی ہیں، سسٹم پہ اگین بوجھ پڑے گا. کچھ عرصے بعد 6 مہینے بعد ہم اس کو انکارپوریٹ کریں گے، جب ہمارا پورا فائنینشیل سارا اور ایچ آر سارا کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر صرف ان رپورٹنگ کے اوپر کام ہوگا، دوسرے پروسیس کے اوپر کام نہیں ہوگا. تو پھر یہ رپورٹنگ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر بلٹ ان آ جایا کریں، خود بنانی نہ پڑے. لیکن یہ پھر بھی اس کے باوجود بھی جتنا بھی یہاں بھی ای آر پی لگتے ہیں، وہاں پہ رپورٹنگ میں آپ کو انفارمیشن ملتی ہے. فردر انالیسز آپ کو ایکسل میں جا کے کرنا پڑتا ہے آپ کو 1 by 1. ٹھیک ہے، ورنہ آنسر آپ کے ٹھیک نہیں آتے. تو یہ آپ کا سلو موونگ، ایوریج، فاسٹ، ایوریج، سلو اور نان موونگ کا کمپلیٹ میں نے ویڈیو آپ کو دے دی. ہوپ فلی آپ نے ساری ویڈیو دیکھی ہوگی. چلیں، تھینک یو سو مچ. میں یہاں ویڈیو کلوز کرتا ہوں.